आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप। तो आज की क्लास के बाद आप कैपेबल होगे अपना ब्लड ग्रुप जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, बट आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर becoming a pathologist. I am only saying that if you know what is your blood group, you know what is physiology behind that, what is the what protein are involved, which type of chromosome are involved in this. So let's start our video. क्या है हमारा ब्लड ग्रुप पता करते हैं। First of all, who discovered our blood group? Our blood group is discovered by Carl Landsteiner. In 1901. So, our blood group is discovered by Carl Landsteiner by 1901. So, what he done? Actually, he done mixing of some blood group as well as serum of his staff, and he find the 4 type of blood group. 4 type of blood group which today's are known as AB O blood group type, but at that time it is ABC. Okay, so first one A blood group, second one B blood group, third one C at starting, but now it is known as O, and then what AB, A blood group, B blood group, O blood group, and AB blood group. A blood group is denoted something is present in their RBC cells. What is present there? RBC cells. We know that our RBC are having some disc-like structure which are present in plasma of our blood. So suppose that it is our RBC cell and this is our plasma cell. Okay, fluid portion, liquid portion is known as plasma and cell is RBC. और जितनी भी रेस्ट ऑफ जो भी ब्लड सेल्स हैं वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं की है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ इस आरबीसी से ही जो है वो काम है, बाकी किसी से कोई काम नहीं, तो उनको ड्रॉ करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, सो इफ वी कैन से दैट आवर ब्लड ग्रुप इज ए, सो having a specialized structure in our RBC. What kind of specialized structure? That is, some type of glycoprotein are present. Some type of glycoprotein present means this racket-like structure are represented some glycoprotein present in our RBC surface. Which type of glycoprotein is present in our RBC surface is determine the our blood group. Which kind of glycoprotein are present our RBC surface is known as our define our blood group. Right students? So what is glycoprotein and how it is produced? Genes. You know all about the genes. I am not going to represent here the genes or chromosome or alleles, but general information. Chromosome 9 having a genes which produce these glycoproteins. Chromosome 9 having a genes which produce a glycoprotein which are determine our blood group. It may be A, it may be B, it may be AB, or it may be O. So these produce some glycoproteins. These glycoprotein determine our blood group. It may be A, it may be B, it may be AB, or it may be O. So in case of A, if I am saying that I am having a blood group A, अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? आरबीसी की सरफेस पे बेटा उस
उसमें कोई ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगी विच आर इंडिकेशन ऑफ ए, मीन्स ए ग्लाइकोप्रोटीन आर प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसी के सरफेस पे कोई ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है जिसको हम ए कह रहे हैं, कोई केमिकल कंपाउंड है जिसको हम ए कह रहे हैं। ग्लाइकोप्रोटीन यू नो सर कंपाउंड, मिक्स कंपाउंड है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट द बायोकेमिस्ट्री ऑफ दिस। ओके, so blood group A having a glycoprotein A on their RBC surface. Blood group A having a glycoprotein on their RBC surface, which are known as, this glycoprotein is known as antigen. Antigen. Okay. Don't be confused with antigen, that is a foreign body particle which cause infection. In case of blood group, antigen are those glycoprotein which determine our blood group present on the glycoprotein present on the RBC surface. Okay, so antigen A will be present on the RBC of glycoprotein RBC. So antigen A will be present on RBC and antigen B will be present on, in case of B. If someone having a blood group B, it means some glycoprotein present, some antigen present on RBC surface, which consider it a glycoprotein B or blood group B. Now what is the case of AB blood group? In AB blood group, A as well as B glycoprotein, in AB blood group, A as well as B glycoprotein, both glycoprotein are there, means both antigen present on RBC surface. AB glycoprotein means AB blood group के केस में A और B दोनों glycoprotein means दोनों antigen A as well as B दोनों प्रेजेंट होंगे आरबीसी के सरफेस में. देन व्हाट अबाउट द केस O? Null means there are no presence of any glycoprotein. आरबीसी की सरफेस पे कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ही नहीं है. आरबीसी के सरफेस पे कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन नहीं प्रेजेंट है, इस वजह से इसको O और जीरो और नल. ठीक है, अगर आपका ब्लड ग्रुप O है इसका मतलब है कि आपकी आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, नाइदर A नाइदर B. ओके, देन what will be this antibodies? As you know that antibodies are fighting cells of our body. हमारी बॉडी की जो फाइटिंग सेल्स हैं जो किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करती हैं उनको हम कॉमनली एंटीबॉडीज कहते हैं. ये एंटीबॉडी हमारी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है. यहाँ हमने एक केस डिस्कस किया था कि आरबीसी के सरफेस पे हमारी ए ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, मींस ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हमारा जो है ब्लड ग्रुप का शो कर रहा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है. अगर हमारे आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन कोई ग्लाइकोप्रोटीन ए प्रेजेंट है, उस केस में क्या होगा, हमारी प्लाज्मा में इसके एक देखिए, हम अपने आप से कभी लड़ते हैं क्या? हम अपने आप से कभी नहीं लड़ते है ना, दूसरों ही से लड़ते हैं. कोई भी होता है वो दूसरे से लड़ता है. अपने आप से कोई लड़ता है? अपने आप को कोई डिस्ट्रॉय करता है? कोई नहीं करता है ना. तो जब कोई अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करता तो हमारी बॉडी जो इतनी इंटेलिजेंट है वो ऐसी सेल्स क्यों फॉर्म करेगी जो खुद अपने आप को ही किल करे, जो खुद अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करे. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ब्लड ग्रुप ए हैविंग अ antibody B. Antibody are those cells which coagulate with antigens. एंटीजेंस के साथ कोगुलेट कर लेंगी, मीन्स उनसे फाइट करेंगी, उनको डिस्ट्रॉय करेगी. सो एंटीजन ए आर प्रेजेंट इन देयर. सो एंटीबॉडी प्रेजेंट इन बी आर एंटीबॉडी B are present in there, or we can simply write this in this form. Okay,
अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसकी आरबीसी के सरफेस पे कोई ग्लाइकोप्रोटीन, कोई एंटीजन एक टाइप का प्रेजेंट है, तो उसकी प्लाज्मा में यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिनको हम एंटीबॉडी बी कहेंगे। एंटीबॉडी बी जो है वो एंटी किसके है? बी के अगेंस्ट में है, ए के अगेंस्ट में नहीं है, बी के अगेंस्ट में है। अगर हम ब्लड ग्रुप ए वाले को बी का ब्लड ग्रुप डोनेट करेंगे, तब ये जो है एंटीबॉडी बी उस ब्लड ग्रुप बी से कोगुलेट होके उसको डिस्ट्रॉय करेगी। यही इसका मेन फंक्शन है ब्लड ग्रुप का, कि पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप, यूनिक ब्लड ग्रुप हैविंग अ स्पेशल टाइप ऑफ डोनर एंड एज वेल एज स्पेशल टाइप ऑफ एक्सेप्टर। ठीक है, सभी सबसे ब्लड ग्रुप नहीं ले सकते हैं, सभी सबको ब्लड अपना डोनेट नहीं कर सकते हैं। कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किसको नहीं कर सकता, वो भी हम अभी समझ लेंगे। अगर हमारे एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। अगर बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है तो बी के केस में बेटा क्या होगा, यहाँ पे एंटीबॉडी अपने से तो लड़ने के लिए कोई नहीं बनाएगा ना, सेल्स अपनी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई सेल नहीं बनाएगा, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी ए और एंटी ए। ठीक है, जो ए ब्लड ग्रुप वाले से लड़ेगी लेकिन अपनी खुद की सेल्फ सेल से नहीं लड़ेगी। अब इसके केस में बेटा क्या होगा, इसमें तो ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, तो इसकी प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी या एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। एक्चुअली बेटा इस केस में ना एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी और ना ही एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी, मीन्स इसकी प्लाज्मा में दैट इज नल एंटीबॉडी। ओके, यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी की प्रेजेंस नहीं है, तभी ब्लड ग्रुप ए भी जो है उसके ए भी डोनेट कर सकता है ब्लड, बी भी कर सकता है और ए बी इटसेल्फ इसको जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू व्हाट विल बी द इन द केस ऑफ O having any glycoprotein or antigen on their RBC surface? No. So there will be presence of antibody A and antibody B. मीन्स व्हाट, अगर मेरा ब्लड ग्रुप O है तो मेरी आरबीसी की सरफेस पे कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन, कोई भी एंटीबॉडी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। इट मीन्स मेरी ब्लड की प्लाज्मा में उसके अगेंस्ट में, मीन्स एंटीजन ए के अगेंस्ट में, एंटीजन बी के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। वो एंटीबॉडीज कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके ब्लड की प्लाज्मा में। ओके स्टूडेंट्स, इतना आई थिंक इतनी चीज आपको क्लियर है कि एंटीजन क्या है, एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट है और एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हमारा ए ब्लड ग्रुप है तो हमारे एक ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन प्रेजेंट है और उसके अगेंस्ट में जो है एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है इन प्लाज्मा। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो बी के केस में हमारी आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट है और उसके अगेंस्ट में ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए प्रेजेंट है। ओके, अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी के केस में हमारी आरबीसी के सरफेस पे ए एज वेल एज बी बोथ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, बोथ टाइप ऑफ एंटीजेंस प्रेजेंट है, सो दैट हमारी ब्लड की प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि वो अपनी खुद को सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई भी सेल्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, बट हम इन केस ऑफ ओ की आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन नहीं प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि इसकी ब्लड की प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए एज वेल एज एंटीबॉडी बी बोथ आर प्रेजेंट। इतना आई थिंक अब आप लोगों को इतनी चीज क्लियर है। तो अब हम लोग इस टॉपिक पे, इस पॉइंट पे आते हैं, डोनर्स ग्रुप एंड एक्सेप्टर्स ग्रुप। अच्छा, ब्लड ग्रुप ए अगर है बेटा तो ब्लड ग्रुप ए किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, बताइए। क्या ब्लड ग्रुप ओ को डोनेट कर सकता है? अगर ए ओ को ब्लड डोनेट करेगा बेटा, उस केस में क्या होगा, अगर ब्लड ग्रुप ए जो है वो ओ को ब्लड डोनेट करेगा, ब्लड की ओ
में कोई भी जो है वो एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, बट उसमें क्या प्रेजेंट है, ए और एज वेल एज बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है बेटा। ए और बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, उसकी वजह से क्या होगा कि कोगुलेशन हो जाएगा। इसलिए ब्लड ग्रुप ए जो है वो ओ को ब्लड नहीं दे सकता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी जो है क्या वो दे सकता है, नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में भी इस ओ की प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। मींस बी कैन ऑल्सो, कैन और कांट, बी कांट ऑल्सो डोनेट द ब्लड टूवर्ड्स द ओ। सो नाउ व्हाट इन केस ऑफ ए बी, क्या ए बी दे सकता है ओ को, नहीं बच्चों, ए भी नहीं दे सकता है। मींस दे तीनों टाइप के ब्लड ग्रुप ए बी और एज वेल एज ए बी जो है वो ओ को ब्लड नहीं दे सकते। तो फिर दे कौन सकता है, अरे ओ तो अपने आप को तो ब्लड दे देगा, खुद को तो हम दे सकते हैं, अपने लिए थोड़ी ना हमने कोई भी वो बनाई हुई है अपने अगेंस्ट में। सो यहाँ पे जो है ये सिर्फ ओ इसको ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। ए के केस में ये हो गया, ए बी के केस में क्या होगा बेटा, क्या ए के केस ये दे सकता है इसको, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि इसके पास ए के अगेंस्ट में कोई भी एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट है प्लाज्मा में। तो ए बी को ए ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है ब्लड। क्या बी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, कोई भी अगेंस्ट में सेल नहीं प्रेजेंट है। क्या ए बी दे सकता है बच्चों, ए बी तो इटसेल्फ दे ही सकता है, वेरी गुड। देन ओ दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। जब हम इसको ओ को ब्लड ग्रुप को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे इसकी सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। अगर एंटीजन नहीं प्रेजेंट है इसका मतलब जब हम इसके ब्लड में ओ ब्लड ग्रुप एंटर करेंगे तो उसके अगेंस्ट में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्योंकि इसकी ब्लड के प्लाज्मा में जो है वो कोई भी अगेंस्ट है ही नहीं, और इसके अगेंस्ट में कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। अगर यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट होता तो वो एज अ फॉरेन बॉडी पार्टिकल एक्ट करता और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स इंट्रोड्यूस होता, बट ये जो है इसके केस में ओ ब्लड ग्रुप दे सकता है। सिमिलरली आप जान सकते हैं कि ए के केस में क्या ए ब्लड दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। क्या ओ दे सकता है बच्चों, वो तो दे ही सकता है, क्योंकि इसकी सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। तो जब हम ए को ओ ब्लड ग्रुप देंगे तो उसके अगेंस्ट में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा। जब कोई यहाँ पे फाइटिंग के लिए सेल ही नहीं प्रेजेंट है तो ये एंटी बी किससे फाइट करेगा। अगर यहाँ पे बी प्रेजेंट होता तभी तो ये एंटी बी एक्ट करता। इट मीन्स यहाँ पे ओ इजिली ब्लड दे सकता है। बी के केस में भी बेटा सिमिलर है, बी दे सकता है, ओ दे सकता है, बट क्या ए बी एक दूसरे को दे सकते, ए बी यहाँ दे सकता है, ए बी यहाँ दे सकता है, नहीं दे सकता। एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है, विच कैन एक्युमुलेट विद दिस, ओके। सो ए बी ब्लड नहीं दे सकता। इस पूरी टेबल से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों कि ए बी जो है वो हमारा यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, उसको सारे ब्लड ग्रुप जो है वो ब्लड दे सकते हैं। ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो यहाँ भी दे रहा 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 है, तो ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। ए बी विल बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ओ विल बी यूनिवर्सल डोनर, राइट स्टूडेंट। इतना हमें समझ में आ गया कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। एक और फैक्टर यहाँ पे वर्क करता है, एक्चुअली एक और प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो एक रेनस नाम के मंकी में डिस्कवर की गई थी, उसकी वजह से इसको राइनस फैक्टर या आरएच फैक्टर बोलते हैं। ये आरएच फैक्टर बेटा अगर प्रेजेंट होता है, अगर यहाँ पे आरबीसी की सरफेस पे आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे आरएच पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव। अगर आरबीसी की सरफेस पे आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो हम क्या बोलेंगे, आरएच निगेटिव। इसी के बेस पे हमारे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव में डिफरेंशिएट होते हैं। ए पॉजिटिव, अगर यहाँ पे ए पॉजिटिव है इस मीन्स इसकी सरफेस पे आरएच फैक्टर प्रेजेंट है।
अगर ये RH फैक्टर अब्सेंट है मीन्स क्या है, ये A निगेटिव। अगर या इसकी सरफेस पे RH फैक्टर प्रेजेंट है तो B विल बी B पॉजिटिव। ओके, B पॉजिटिव, मोटिवेशनल नहीं, B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। AB की सरफेस पे कोई RH नाम की प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है RBC की सरफेस पे, तो AB निगेटिव। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं। आई थिंक आपको ये छोटा सा बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप उसको अच्छे से देखिए, पहले समझिए सारी कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।